ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 30 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਯੁਵਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੰਚਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੋ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम। हाँ जी। सो प्रदीप जी, अज तुसी ये जो फंक्शन कर रहे हैं किस बेस ते कर रहे हैं ते पहला भी कीता है ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੇਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਯੁਵਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਜੀ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਜੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 70 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੋਂ ਅਬਾਵ ਹੈ ਔਰ 40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦੇ।
ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ 70 75 55 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜੀ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ। ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਤਾ, ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। मुझे कपटी और न जाने क्या क्या बताया भैया। बस इसी कर मैं आपके पास चला भैया, चला। लक्ष्मण और घर तुम्हारे जाते ही शत्रु हम पर वार कर गया। रहा तो समझो जीते जी ही मर गया। लक्ष्मण मेरे भाई मृग नहीं मानी सब है, यह कार गुजार उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में वह दारुण पुकार उसी की थी। तेरे जाने के बाद ना लक्ष्मण ना जाने क्या बीता है कुटिया में। फड़क रहा है कामम मेरा, सीता नहीं है कुटिया में। भैया आप चिंता न कीजिए, मैं आप भाभी की सुरक्षा हेतु एक रेखा खींच कर आया था और उन्हें हाथ जोड़कर समझाया था कि माता इतनी कृपा करना, किसी भी स्थिति में इस रेखा से बाहर पग न धरना। खैर यह तो अच्छा ही किया जो खींची सुरक्षा रेखा है, पर भविष्य के घर में क्या छुपा यह कब किसने देखा है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ मेरा नाम संस्था? अजय कुमार कक्कड़ है, जी दिल्ली का निवासी हाँ। मुझे बड़े हर्ष की बात है कि श्री राम सेवक युवा कला मंच की ओर से जो सम्मान समारोह इन्होंने जो किया है,
हमारे दिल्ली में आज तक ऐसा सम्मान समारोह नहीं हुआ है आज तक। हमें बड़ी खुशी है कि, और बड़ा अचंभा भी है कि दिल्ली में ना होते हम एक चंडीगढ़ में आके इतना बड़ा एक शो देख रहे हैं, करने को मिल रहा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है। और हम इन सभी टीम को इतनी मुबारकबाद देते हैं कि मालिक इनको आने वाले समय में इतना शक्ति प्रदान दे कि इनको चार चांद लगें, ऐसे प्रोग्राम हर समय होते रहे। वैसे मैं 3 साल से मैं आ रहा हूँ, 2022 में भी आया था, बग्गा परिवार में टैगोर थिएटर में भी प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बड़ी बखूबी काम किया था। हमारे 17, 18, 20 लोग आए थे कलाकार, उन्होंने काम किया था। और चंडीगढ़ में हमारा इतना उस टाइम नाम हुआ था कि हम क्या बताएं, आज तक उस समय के प्रोग्राम को आज तक लोग जो है याद करते हैं। हाँ, तो हमें बड़ी खुशी है, मैं इनको बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। मेरे साथ हमारे शुभम जी आए हैं, ये राम जी का पात्र करते हैं मेरे साथ दिल्ली में। ये शेखर शर्मा जी हैं, ये भरत जी का और भिन्न भिन्न पात्र करते हैं। ये नीतू जी हैं, ये हमारे साथ सुमित्रा जी का और भिन्न भिन्न पात्र निभाती हैं। तो हम अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं हार्दिक पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं प्रभु से ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। तो आप कितने समय से, कितनी देर से, कितनी आयु में इस रामलीला मंच से जुड़े थे? मैं बचपन से 12 साल का जब था, मैं प्रभु श्री राम जी की लीला के मंचन के प्रति जुड़ा था। आज मेरी जो एज है 62 प्लस है, मुझे 52 साल हो गए हैं। बीच में 2 साल हमने लीला का मंचन नहीं किया, कोरोना काल के समय में हमने नहीं किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, लेकिन वो तो हमें सबको मजबूरी थी मुझे। लेकिन टोटल जो है 52 साल मुझे हो गए। मैं अपने राघव के प्रति खूब नाम कमाया है। उस राघव ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है, उसको 4 चांद लगे हुए हैं इज्जत को मेरे को, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं उनसे यही मांग करता हूँ, हे मेरे राघव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम जी, मुझे इतनी शक्ति प्रदान देना कि मरते दम तक मैं मरूं भी तो आप मेरे मुख से निकले जय श्री राम। मेरी ऐसी भावना है। अब मैंने जो लिया इस साल, जो मैं लीला का मंचन करता, इस साल जो लास्ट टाइम गया हमने लीला का मंचन करवाया खुद। मेरे पास 4 साढ़े 4 लाख रुपए का सामान बना है, जो मैंने लीला का मंचन करवाने के लिए बच्चों को पहनावा, जो ज्वेलरी होती है, ड्रेसेस होती हैं, पूरा सेट जो होते हैं वो हमने बनवाए और वो चले। और मैंने इतनी बढ़िया बाखूबी मेरे पास ड्रेसेस हैं कि लोग देखते हैं कि इतनी ड्रेसेस अच्छी आपने कहाँ से बनवाई हैं। ये तो मेरे राघव मुझे विद्या देते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और उसको दिखाने का, पहनाने का इनको प्रयास करते हैं, ताकि मेरे बच्चे जो पात्र बने हैं, देखिए कला के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। कला भी होती है तो कला के साथ उसकी सुंदरता भी होनी चाहिए। जब तक उसकी सुंदरता नहीं होगी, उसकी कला का वो प्रदर्शन नहीं करेगा। हम कलाकारी करते हैं, कलाकारी के साथ म्यूजिशियन है, ढोलक बजाएगा, अपनी तरह तरह की आवाज़ें निकालेगा ट्यून से और सारी देगा, तो तभी हमारी कला का जो एक निखार है तभी आता है। तो जितने भी रामलीला के साथ निर्देशक, कलाकार, ड्रेसेस, हमारी मुकुट, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे व्यास जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 40-50% जो है कलाकारी अपनी दिखाता है, बाकी परसेंटेज जो है सब लोगों में बढ़ जाती है। वो अपनी कला का जो एक रूपरेखा बना के हमको देते हैं, हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे कला का निखार निकलता है। ये जो निर्देशन है ये कब से कर रहे हो? मैं निर्देशन जो है पिछले साल से ही पहली बार कर रहा हूँ। बचपन से रामलीला करता आ रहा हूँ, लेकिन निर्देशक का जो पद संभाला है पिछले साल 22 से संभाला है, मुझे 1 साल हो गए। लेकिन दिल्ली में मैंने भिन्न भिन्न मंचों के ऊपर जो कार्य किए हुए हैं वो राघव के चरणों में समर्पित हैं। हाँ जी, थैंक यू। आप राम जी का रोल निभा रहे हो, कब से कर रहे हो? मैं 2018 से कर रहा हूँ। तो पहले चिराग दिल्ली में किया था, देन नोएडा में, अब इस बार द्वारका में करने जा रहा हूँ। ओके। लेकिन इस साल जो है, जो 23 जो है, ये शुभम जो है मेरे साथ राम जी का पात्र करने जा रहे हैं। मेरी समिति में, हमारी रामलीला में जो हम जहाँ भी हमें मिलेगा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके साथ ये राम जी का पात्र स्वरूप ये बनेंगे। जी जी। तो किन किन मंच से जुड़े हो? अभी तक मैं सिर्फ रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था, उन्हीं के साथ कर रहा था। अभी इसी बार मैं इनके साथ कर रहा हूँ, कक्कड़ जी के साथ जी। तो ये दूसरा 2 ग्रुप्स के साथ में जॉइंट हुआ अभी। थैंक यू। सो आप शेखर जी, आप भरत का रोल करते हो, इसके अलावा भी कोई और रोल किया है?
हाँ जी, मैंने छोटे मोटे बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। गुरु वशिष्ठ, जनक का कैरेक्टर किया है मैंने। काफ़ी सारे शिव जी का फर्स्ट डे होता है जो शिव पार्वती का होता है, वो मैंने किया है। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कक्कर जी के साथ मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, तो इनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा। जैसे कोई डायलॉग किसी भी पात्र का हो? जी, भरत का डायलॉग बोलूँगा। माता, आप कैसे कह रही हैं? भैया भैया, जो जो इस अयोध्या नगरी के, इस अयोध्या नगरी की शान है, उनको आपने कैसे जाने दिया माता? कैसे जाने दिया? जय श्री राम। सो नीतू जी, आप कौन कौन से रोल निभाते हो दिल्ली में? सर, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही सर के साथ रामलीला की थी और उसमें मैंने, जैसे सर ने बताया, सुमित्रा, उसके साथ में जैसे सखियों के रोल, सुनैना, हाँ, पार्वती का रोल। तो मैंने अभी यही छोटे मोटे रोल्स किए हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड जब तक मैं करूँगी तब तक मैं सर के साथ ही काम करना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करते हैं और हमारा ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सर के साथ ही हमेशा अच्छे तरीके से काम करूँ और काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। इससे पहले भी कहीं किया है थिएटर? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम? यस यस। सुंदर काम। क्या कहेंगे कक्कड़ साहब के बारे में? कक्कर सर के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये एक अपने पिता समान जो होते हैं, जो अपने बच्चों का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। जैसे कि टाइम से लाना, अभी कुछ खाया या ना खाया, बिल्कुल एक अपने बेटी की तरह ध्यान है। ये नहीं सोचना कि ना भाई चलो एक आर्टिस्ट है तो कर लेगी अपने तरीके से अपना काम, सोच लेगी, वो नहीं। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, एक अपनापन सा फील कराना। तो बस इससे बड़ा मैं उनके लिए क्या बोलूँ, पिता समान है बिल्कुल हमारे। थैंक यू। जय श्री राम। बड़ी ये मेरे बच्चे हैं सारे। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा जी। जी, आप कौन से मंच से जुड़े हो, रामलीला मंच से? मैं उत्तराखंड युवा समिति के साथ कर रहा हूँ आजकल। वैसे मैं चंडीगढ़ में 50 साल से रामलीला का जो है जुड़ा हुआ हूँ रामलीला के साथ। और रामलीला में तकरीबन सभी रोल, छोटे से लेके सीता का, लक्ष्मण का, राम का, रावण का, हनुमान का, अंगद का, सभी रोल किएंगे, दशरथ का, कुंभकर्ण का। कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि जो मैं नहीं किया हो मंचन। कितनी आयु में आप जुड़ गए थे? मैं तो वैसे तो 4-5 साल का जब था तब से ही अपने गांव में रामलीला के साथ जुड़ा था, क्योंकि मेरे फादर साहब डायरेक्टर थे रामलीला के, बड़े भाई म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझसे बड़े भाई राम का रोल करते थे। तो रामलीला हमारे अपने घर की होती थी, सारा सामान रामलीला का हमारे घर में ही होता था। तो इसलिए बचपन से ही जुड़े हुए, 50 साल तो चंडीगढ़ में हो गया आए हुए जी। तो रामलीला यहाँ भी जुड़े हुए हैंगे जी। सो कोई भी डायलॉग सुनाएंगे? मैं आपको कुंभकर्ण का डायलॉग सुना देता हूँ। भ्रातश्री, तुमने कुंभकर्ण की ताकत को पहचाना नहीं। मेरे सामने सहस्त्रार्थियों की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वचन देता हूं, लंका की आन और शान के लिए कल रणभूमि में सूर्य अस्त होने से पहले उन बनवासी छोकरों के सिरों को काटकर लंका ले आऊंगा। जय लंकेश। सो रामलीला से अलावा आपने कहीं और भी रंगमंच पे किया? हाँ जी, मैं टैगोर में कृष्ण लीला वगैरह, लाइट एंड साउंड, काफ़ी हमारे कई मंच हैं हमारे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। कहीं पंजाबी पिक्चरों में भी थोड़ा थोड़ा किया हुआ हैगा। हमारा एक ये मदर इज़ ऑलवेज राइट पिक्चर को अवार्ड भी मिला है, जिसमें मैंने बैंक मैनेजर का रोल किया था। और भी यूट्यूब पे कई पिक्चर आई हैं। थैंक यू। ओके सर। क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह खरोला। आप कौन से मंच से? श्री बद्रीश रामला कला निकेतन, गढ़वाल, सेक्टर 30, चंडीगढ़ जी। तो आज आपको सम्मान मिला, क्या कहोगे? ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये मेरा ख्याल चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ ये प्रोग्राम, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार करते रहें जी। आप निर्देशक हो? नहीं, मैं चेयरमैन हूँ रामला का, और हनुमान का 24 साल मैंने हनुमान का पार्ट खेला है, 18 साल महाराज दशरथ का,
और 8 साल परशुराम का। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार पटवाल। आप किस मंच से? हम इसी मंच से? इसी मंच से बद्रीश रामलीला। आप कौन सा रोल अब करते हो? तकरीबन सभी रोल कर लिए हैं तकरीबन, बस रावण दल रह गया। राम दल होता है, रावण दल होता है। रावण दल में कम रोल किए हैं, राम दल में तकरीबन सभी रोल कर लिए हैं। ओके। और डायरेक्टर आजकल डायरेक्टर हूँ इस रामलीला का। डायरेक्टर। हाँ जी। तो कोई डायलॉग? सर डायलॉग क्या है, एक छोटा सा बंद है जी, राम लक्ष्मण का भाई के प्रति कि बेटा बेटी भागनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। जी थैंक यू। थैंक यू जी। ये हमारे महेंद्र सिंह रावत हैं। हाँ जी। ये भी डायरेक्टर हैं हमारे रामलीला के, मेरे साथी हैं जी। रावत जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जी, कि रामलीला के कलाकारों को, क्योंकि हम देखते हैं कि थिएटर के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, बाकी कलाकारों को, फिल्मों के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जी। रामलीला के कलाकार वो होते हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं। जी, वो अपना धर्म के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जी। सब रोज़मर्रा के अपने काम छोड़ के शाम को इकट्ठे होकर रिहर्सल करते हैं, उसके बाद रामलीला करते हैं जी। और भगवान राम के प्रति अपनी सेवा देने के बाद अपने घर चले जाते हैं। जी। उनको ऐसे सम्मानित करना बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। जी। जैसे मैं वैसे पंजाब एंड हाई कोर्ट में स्टूडेंट हूँ, ये भाई साहब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में है, सर हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर हुए हैं। तो मतलब सब सरकारी और जो पुराने हैं, कुछ प्राइवेट बंदे होते हैं जो वो काम करते हैं, पर टाइम निकाल के सिर्फ प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं। और उनको पहचान के उनको एक मोती की तरह पिरोना और यहाँ पे सम्मानित करना बड़े गर्व की बात है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो हम बद्रीश रामलीला जो हमारी रामलीला है उसकी तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया और आगे भी ऐसा करते रहें, भविष्य में भी हम ये कामना करते हैं। और अब तो बड़ी खुशी की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कोई पेड आर्टिस्ट नहीं है। रामलीला के हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा मिश्रा। जी। आप कौन सा रोल निभाती हो? मैं कौशल्या, वेदवती और अहिल्या, सीता की सखी, बहुत अन्य प्रकार के हर तरह के इस रामदल के रोल निभाती हूँ। कोई डायलॉग? मैं वेदवती का डायलॉग बोलना चाहूँगी। जब आखिरी में रावण उसको छू लेता है तो वो आग में जल जाती है, तब वो बोलती है, पापी तूने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता जलाऊंगी, प्रीतम विष्णु के वास्ते अब जीते जी जल जाऊंगी, महाराज जनक घर मिथिला में फिर जन्म दोबारा पाऊंगी, सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। सो आज कितनी खुशी महसूस हो रही है ये सम्मान पाकर? इतना बहुत खुशी हो रही है कि इतनी छोटी सी उम्र में हमें इतना गर्व महसूस होने का मिलता है। हमारे स्टेज में भी हमें बहुत सम्मानित किया जाता है सबकी तरफ से कि हम बहुत छोटे हैं, हमें बहुत वहाँ भी सम्मानित किया जाता है, यहाँ भी हमारे डायरेक्टर वालों की तरफ से हमें इतना सम्मानित किया जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा सृष्टि मेरा नाम। आपका रोल कौन सा होता है? मेरा सलोचना का रोल। एक रोल करते हो? नहीं, ज्ञानवती, तारा। हाँ जी। तो आप पहले भी कभी इस मंच से या कहीं किसी और थिएटर में किया है? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है इधर। फर्स्ट टाइम इसी में किया। तो क्या कहेंगे, सम्मान लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेजल है। जी। आप? मुझे 4 साल हो गए हैं इस रामलीला में जुड़े हुए और करते हुए जी। और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर फील करती हूँ कि मुझे मतलब सच में इतनी छोटी उम्र में हमें इतना कुछ मिल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड स्पेशल थैंक्स टू मोहिंदर भैया, राजू भैया और अंकल, जिन्होंने मतलब मुझ में देखा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे उन्होंने मौका दिया अपने रामलीला में ऐड होने का। सो थैंक यू सो मच। कौन सा रोल निभाते हो? मैं स्वरूपनाका का करती हूँ, केकई का, मंदोत्री का, सखी का, बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। तो आज आपको सम्मान मिला, कैसा लगा? आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई गॉट दिस। ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। पहले हमारे कलाकारों को बहुत ही निष्कृष्ट समझा जाता था जो रामलीला में काम करते थे, बट जब हमने ये लिया तो हमें लगा कि हम भी किसी कलाकार से कम नहीं हैं। कौन से मंच से हो? मैं धर्म रक्षक कला मंच मनीमाजरा से हूँ। रोल कौन सा करते? मैं केकई का रोल करती हूँ। हाँ जी। तो आप विलियन का रोल करते हैं?
या कोई डायलॉग कहीं ना होती तो ये सब ना होता। सब ना होता, कहीं ना होती तो पंगा ना होता। बिल्कुल बिल्कुल है। सो कोई डायलॉग सुनाएंगे? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो छल कपट और मुझे जताने आए हो। ये डायलॉग तब बोलती है कि कहीं जब राम को वनवास दिलाना होता है, जब वो मतलब को भवन में होती है। यस यस। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता चौहान है और मैं अभी थोड़े समय पहले ही नॉमिनेट हुई हूँ अपने चंडीगढ़ से, नॉमिनेटेड काउंसिलर गीता चौहान के नाम से। और इससे पहले मैं धर्म रक्षा कला मंच से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और उसका मैं चेयरमैन रही हूँ। ये हमारे डायरेक्टर हैं अजय जी और ये हमारे प्रधान और ये हमारे कलाकार पूजा है और साथ में ये हितेश बंटी जी, मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ ही हैं। और मुझे मतलब बहुत खुशी हुई, हमारे जो खास रही हमारे जो रामलीला की जब हमने शुरुआत की है, जब से मैं इनसे जुड़ी हुई। पहले ये हमारे एरिया में लड़कियों को इसमें मतलब एंटर करना अच्छा नहीं समझते थे कि लड़कियों को रोल के लिए लेके जाया जाए। जब से मैं जुड़ी अजय जी की मदद से, अपने प्रधान जी की मदद से, हमने लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियों के रोल है वो लड़कियों को ही करवाए, तो इसमें योगदान रहा। और पहली बार मैं एक एज ए महिला महासभा की मेंबर बनाई गई, पहली महिला। और अब तो काउंसलर बन गई हूँ, दिन रात मतलब चौगनी तरक्की कर रही हूँ राम जी की कृपा से। और इसके साथ मैं डायलॉग तो सिर्फ जय सिया राम ही बोलूँगी। धन्यवाद। आप रोल भी निभाते हो? हाँ जी, मैं केकई का रोल निभाया मैंने, शबरी का शबरी का रोल किया। जब वो झूठे बेर मतलब समाज को एक संदेश था कि जो श्री राम भगवान थे वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, भेदभाव जातियों का हमने शुरुआत की है। भगवान ने भी कभी भेदभाव नहीं किया कि ये शेड्यूल कास्ट है या नीचे जाति से हैं, उन्होंने उनके झूठे बेर खाए थे। ये मतलब अगर अब हम रामायण को अगर देखें तो अगर हम सबक सीखना चाहें, जितनी भी परिस्थितियाँ प्रत्येक जीवन के मतलब व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम रामायण से उससे शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपना परिवार और बच्चों को क्या शिक्षा देनी है और आगे हमें समाज के साथ कैसे मिलकर काम करना है। जी धन्यवाद जी। आपका नाम? अजय पाल जी। आप डायरेक्टर हो इस कमान? हाँ जी, हाँ जी जी। तो क्या कहेंगे आज का सम्मान के बारे में? आज का सम्मान समारोह एक बहुत अच्छा रहा और पहली बार एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया चंडीगढ़ द्वारा, जिसमें कि नॉर्थ की सभी रामलीलाएँ आमंत्रित थी और उनमें लेडीज़ जो महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया कि जिसमें महिला कलाकारों को सम्मानित किया और उन लोगों को सम्मानित किया जो लड़के हैं लड़कियों का रोल करते हैं रामलीला में। तो इनका ये इस टीम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से चाहूँगा कि हमेशा यह टीम है अच्छे से कार्य इसी प्रकार करती रहे। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। मैंने सुमित्रा का रोल किया था, फर्स्ट टाइम किया था, पर अच्छा लगा। मुझे कुछ नहीं आता था पर मेरे सर ने मुझे सिखाया और मैंने फर्स्ट टाइम रोल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर को थैंक यू। कोई डायलॉग याद है? जी। वाह बेटा वाह, तुमने मेरा सर आज फख्र से ऊंचा कर दिया। ये सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को कहती है। थैंक यू। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सेक्टर 40 में लक्ष्मण का रोल करता हूँ। मुझे 18 साल हो गए रामलीला करते हुए। एक्चुअली आई एम थिएटर आर्टिस्ट, मैंने थिएटर भी किया है। तो मैं सेक्टर 20 में और सेक्टर 28 में, मैं सेक्टर चंडीगढ़ में जो भी है मैं हर जगह पे मैंने रोल किया लक्ष्मण जी का। तो मैंने 7 साल लक्ष्मण जी का रोल किया है। वाह। हाँ जी। कोई डायलॉग सुनाएंगे? हाँ जी, डायलॉग बिल्कुल। सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलन पर तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को ही देखो तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन क्या कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, क्या इसलिए दोषी ठहरा है? अच्छा तो अपराधी हम ही सही, हमने ही जार निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, यह शिव धनुष हमें नहीं तोड़ा है। ऐ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे के फरसे ने खून की नदियाँ बहा दी हैं। इस भारत भूमि पर 21 बार क्षत्राणियाँ विधवा बना दी हैं।
बस इसी एक पर्चे से वीरों का स्वर द्वार खिला, हल्दी के गांठ पर सट्टे का बाजार चला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है, पर्चे में नहीं प्रबलता वे। पर हाँ बूढ़ी बाणी में जो बल है, क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी में आपको इन फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाले ही जो हवे से बैग खा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने पर मुरझा जाए। क्या नाम है बेटा? वीर अजीत सिंह। आप भी रामलीला में रोल करते हो? हाँ जी। कौन सा रोल? रावण का। रावण का? अरे कोई डायलॉग सुनाएंगे रावण का? सुनाओ फिर। रण की भूमि ये है, बच्चों का अलग खेल है, सामने से हट जा राम, तेरा मेरा क्या मेल है। स्वच्छ गंगा का जल होगा हमारे ही चरण धोने में, हमारी ही ध्वजा लहराएगी दुनिया के कोने कोने में। जय शंकर, जय शंकर। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? सहज धीमान। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ? श्री रामलीला कमेटी खुड्डा लाहौरा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी। ਕਿਹੜਾ? माता दा। माता दा। ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰੂਗੀ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। ਸੁਣਾਉਂਗੇ? ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਓ। ठीक है। नाक कटी नकटी हो राई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता दो बहना स्वरूप नखा ये कैसा घमसान हुआ। किस जाली में किए हरकत, किसके सर पे मौत चढ़ी, जीने से हराम है किसकी आई बुरी घड़ी, सामने से सांप के मुंह में उंगली डाले, इतनी किसकी जरूरत पड़ी, अदम के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लड़ी, कौन है जिसको अपने बाहुबली पे इतना ही अभिमान हुआ, बता दो बहना सूर्पनखा ये कैसा घमसान हुआ। जय श्री राम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? भाविनी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ये पिछले साल इस किया था पहली बार। ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ? मंत्रा और शबरी। ਮੰਤਰਾ। हाँ जी। ਕੋਈ याद है डायलॉग? गाना हाँ, गाना है। गाना? हाँ जी। गाली दो लेना फिर। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात, रानी बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपे गात, थर थर कांपे गात, बात क्या कहूँ बहुत दुखदाई, राज्यसभा में बैठ आज मन मानी बात सुनाई, राम बना लिए युवराज ना किसी ने जुबान हिलाई, राज तिलक की राजा ने कल की तारीख सुनाई, मिला राम को राज भरत को मिल गई ताबेदारी। वाह, आज भी आपको सम्मान मिला? हाँ जी। किवें लगे सम्मान लेके? आ लो जी, सम्मान चिन्ह बाबनी जी का। कितनी खुशी हुई है सम्मान? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ जी। ठीक है, एज कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 13। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 8th। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम वरुण शर्मा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚ? मैं खुड्डा लाहौरा कमेटी रजिस्टर्ड। ਓਕੇ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं सीता और तारा का करता। सीता और तारा? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ? हाँ जी, गाना याद है। ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਸੁਣਾਓ। क्या होगा? करदी हाँ मिंतपति, करदी हाँ मिंतपति जी हाड़े ना जावी वे, करदी हाँ मिंतपति जी हाड़े ना जावी वे, हजे ता मेरी जवानी ठाठा है मार दी, करदी हाँ मिंतपति जी। थैंक यू। वाह जी वाह। सो सम्मान लेके किवें ਲੱਗਿਆ? बहुत वधिया लग्या। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। वेलकम। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड खुड्डा लाहौरा जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राजकुमार है जी। जी। मैं प्रेजिडेंट ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਖਿੱਚੇ ਕਰਦਾ ਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ
15-16-17 ਸਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ हैं? हाँ जी, मैं रोल भी कराया जी। मैं कुंभकर्ण का भी रोल कराया था जी, ऋषि मुनिया का भी करता रहा जी। मैं साडी कमेटी ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली सब तो ज़्यादा अपना शुभ नाम? मेरा नाम संदीप है जी। मैं भी रामलीला कमेटी खुड्डा लाहौरा तो हाँ। एक्चुअली जो आज इनाम मिले ना, ये बेसिकली उन्होंने पात्रों को मिले जो आम तौर पर इग्नोर कर दिते जाते हैं, लेडीज़ रोल वाले। अगे मिलता है हाँ जी, जो रामचंद्र जी को मिल गया, हनुमान जी को मिल गया, रावण जी को मिल गया, है ना। बाकी मतलब एक करैक्टर इंपोर्टेंस है इन्हों की, बट ये आम तौर पर इग्नोर रहते हैं। अज उन्होंने अगे लिया गया। बेसिकली सब तो बड़ी गल ये है, ये सब तो अच्छी चीज़ थी इसमें। थैंक यू सर। साडी रामलीला की एक होर खासियत है, साडी रामलीला मल्टी कलाकार हैं सारे। हुण प्रधान जी नूं कल नूं असीं कह दो तुसीं अपने दा रोल करना है कर लूँगे, क्योंकि सब नूं आंदा, सब नूं है। डायरैक्टर साहब नूं असीं कह दूँगे तुसीं कोई रोल करना है कर लेना जी। हुण जिद्दां ये रावण जी नहीं, हरेक रामलीला च क्या हुंदा, रावण सिर्फ रावण दी रोल करदा है। साडी रामलीला च खाते रावण है, ये 10 रोल होर करदे हैं नाल दी नाल। इन्होंने जो कह दो लेडीज़ रोल करना है, लेडीज़ रोल भी करना है। मैं सीता का रोल भी किया है। हाँ, हुण मैं 15 रोल करदा अपनी। मैं कौशल्या ककई जी ये करते सीगे, थोड़े हुण इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वैसे साडे नाल बैठते हैं। तो बजरंग बली जी का, बाली का मल्टी रोल सारे रोल करते हैं असीं। डायलॉग जिहड़ा तुसीं कहोगे मार देना। हाँ जी, सो डायलॉग सुना दो फिर। अंगद ही मार देना। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, बाकी कोई रहा होवे उसको भी बुला ले तू। ना फिरे वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पे थूकेगा। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? राजश्री। आप कहाँ से आई हो? दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से। कौन से मंच के साथ जुड़े हो आप? सुभाष नगर 4-6-7 ब्लॉक। ओके, कौन सा रोल करते हो आप? आजकल मैं ज़्यादातर केकई का कर रही हूँ, वैसे पहले और भी काफ़ी सारे किए हैं, इंक्लूडिंग सीता। ओके, तो कोई डायलॉग सुनाएंगे? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है, तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु, मुझको मेरे वो 2 वर दो जो बनते हो धनवान प्रभु। आज आपको ये सम्मान मिला है चंडीगढ़ में आकर, कैसा लगा? सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी ये सुनकर कि इस तरह का कुछ किसी ने सोचा है, और ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने इस स्टेप के बारे में सबसे पहले तो सोचना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको इतने बड़े लेवल पे सक्सेसफुल बनाना। क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह तो देखे हैं और सुने हैं, लेकिन इस तरह का कोई जो इतने बड़े मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने कवर किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। और जितने यहाँ पर स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स जो कलाकार हैं, और आई वॉज शॉक टू हियर दैट somebody is working for 65 years in this field, in particular in Ramlila only, and they have played so many roles. और स्पेशली जैसे हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, नरेंद्र मोहन कुमार जी हैं, वो तो मैंने सुना है कि 78 years old हो गए हैं। तो यहाँ पर आना इतना मैं कहती हूँ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इस तरह की चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी। कि यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने देखा कि 5 साल के बच्चे से लेके और 80 साल तक के
हमने आर्टिस्ट को, कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक जगह इकट्ठे होते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ी बात थी और वाकई काबिल तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया जो इनकी जो परफॉर्मेंसेस रही, और इन्होंने क्या किया कि बीच बीच में आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस रखी, जैसे कृष्ण लीला रखी, रामायण के कुछ सीन्स रखे, और फिर कुछ देर के लिए उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखा, कुछ देर के लिए इन्होंने प्रोग्राम्स अपने रखे, और फिर बीच बीच में कलाकारों ने आके अपने डायलॉग्स भी सुनाए। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो हमारे एंकर रहे, जो हमारे यहाँ के चंडीगढ़ के जो राम से इधर जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सभी आर्टिस्ट का बहुत ख्याल रखा। यहाँ पर हर तरह का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। सो ओवरऑल मैनेजमेंट भी अच्छा है, इनका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है, और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और बहुत ज़्यादा इन्होंने जैसे खाना वगैरह, मतलब किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। हम कहते हैं खाना भी बहुत बढ़िया था, और इन्होंने केयर भी बहुत अच्छी करी, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। थैंक शुक्रिया। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम अंकित खन्ना है। आप कहाँ से आई? हम आए हैं नोएडा से। हमारी टीम है श्री जी कला मंच। ओके, आप कौन सा अभिनय निभाती हो रामलीला में? मैं भगवान श्री राम जी का किरदार निभाता हूँ, और मैं पिछले 5 सालों से भगवान श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले भी कभी किरदार कहीं किया है, कहीं थिएटर वगैरह? एक्चुअली मैं थिएटर नहीं करता हूँ। मेरा बेसिकली बस मैं राम जी को देखने जाता था जब मैं बचपन में था, और मुझे बस ये था कि मैं करूँगा तो रोल भगवान श्री राम जी का करूँगा। तो उसके बाद जब संदीप भैया मुझे मिले डायरेक्टर के रूप में, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। आज जो मैंने आज भी प्रोग्राम किया है, बिल्कुल संदीप भैया की देन थी। उन्होंने बहुत कुछ अच्छी डायरेक्शन की है। डायलॉग मेरे नाना जी ने लिखे हैं सारे। बट एक चीज़ होती है ना, जब डायरेक्टर अच्छा होता है तो शिष्य उनका अपने आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब मेरे फादर भी थे, उन्होंने बोला था कि इनसे पहले भरत का रोल करवाओ, पर मेरे डायरेक्टर थे कि नहीं, इसको मैं भगवान श्री राम में उतारूँगा। एक्चुअली बात क्या थी कि जब मैं रामलीला करता था तो मेरी एक जो वॉइस थी ना, वॉइस पे पब्लिक वो हुई थी, मतलब कि यार इसको लड़के को राम कराओ। तो मैं विष्णु जी का रोल करता था, एक साल मैंने खाली विष्णु का रोल किया है। उसके बाद मैं भगवान श्री राम जी का किरदार में आ गया था, और अभी तक भगवान श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ, और भगवान जी के आशीर्वाद से। एक डायलॉग हो जाए? डायलॉग अभी तो आपने रो रहा हूँ, तो रोने का डायलॉग तो आपने देख लिया होगा मेरा। बट अगर मैं बहुत प्यार वाले शब्द बोलता हूँ कि भगवान जी श्री राम जी की होती है एक मिठास, और मिठास पे दुनिया फिदा है। ठीक है, तो मैं भगवान श्री राम जी का एक डायलॉग बोलता हूँ, छोटा सा है। जब परशुराम जी आते हैं तो डायलॉग कुछ इस प्रकार का है। भगवान, शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पे हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। जय श्री राम। दास तो वो कहलाता है जो दासों जैसा काम करे। वो दास ही क्या जो स्वामी को बदनाम करे। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आई तिलका है चोर की दाढ़ी में। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा आपने डायलॉग भी बोला। क्या कहेंगे, आज आपने सम्मान भी किए हैं? जी सर जी, सब बहुत अच्छा लगा। उत्तर भारत से लेके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के सब टीमें यहाँ पर पहुँची, और सब का प्रोग्राम देखा और मन गदगद हो गया। अब भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे कि हम हर साल इसी तरह से सबको इसी तरह सम्मानित करें जी। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी प्रकार सब परिवार पे, रामलीला कमेटियों पर, सब परिवार पर बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। सो आज आपका इन्होंने सम्मान किया है चंडीगढ़ में, कैसा लगा आपको? कितनी खुशी महसूस हो रही है? पहली बात तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ अवार्ड फंक्शन में, और इससे पहले मैं आया नहीं था। बट आज जिस तरीके से इन्होंने हमारा, कल से हम आए हुए हैं शाम से, इन्होंने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया है, बिल्कुल अपनों की तरह रखा है। तो इनका जैसे होता है ना कि जब बाहर से आते हैं तो स्वागत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कि एक मान सम्मान बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उन्होंने वही हमारे साथ किया है, मान सम्मान। हर एक 2-2 मिनट बाद हमसे पूछ रहे थे कुछ चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा चंडीगढ़ में आके। और कोशिश यही करता हूँ कि अगले साल अगर ये कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते हैं, आने वाले महीने में कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते हैं, तो पक्का हम आएंगे और अपनी कुछ अच्छी और प्रस्तुति अब इनके सामने पेश करेंगे। जी, थैंक यू। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम हिमांशु नवीन गुप्ता है। आप कहाँ से आए? मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मुरादाबाद शैली से आया हूँ। ओके, आपकी रामलीला के मंच का नाम? श्री राम सिंह कला मंच, मुरादाबाद शैली।
जी। तो आप क्या उसमें क्या रोल अदा करते हैं या निर्देशन करते हैं? सर मैं अपनी टीम में, मेरी अपनी ही टीम है, मेरे जो उस टीम के डायरेक्टर हैं श्री योगेंद्र सिंह राजू एडवोकेट जी, वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे टीम के डायरेक्टर भी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं श्री युवा कला मंच यहाँ जो महिला सशक्तिकरण का सम्मान समारोह हुआ है उसमें मैं निर्देशक के तौर पर यहाँ आया हूँ और मैं अपनी टीम में ऑलराउंडर कलाकार के तौर पर काम करता हूँ और बाकी सह निर्देशक भी हूँ। जी। तो कैसा लगा यहाँ आकर? कैसा क्या, मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज मुझे अपने कुछ सीनियर कलाकारों का, बुजुर्ग कलाकारों का वो मान सम्मान प्यार मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मैं उन लोगों से फ़ोन पे व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट करता रहता था। मेरी जो कमियां थी, मेरे जो मैं सीख रहा हूँ आज भी भगवान राम के प्रति कला को, तो जो कमियां वो मुझे पहले फ़ोन पे बताते रहते थे। आज उनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और श्री राम सेवक युवा कला मंच के डायरेक्टर प्रदीप कुमार जी या जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, स्टेज पर जो सम्मान दिया, उसका मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। जी। कोई डायलॉग हो जाए? डायलॉग तो सर वैसे तो हर पार्ट करते हैं, लेकिन कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो कि यादगार रह जाते हैं। तो मैं आपको लक्ष्मण जी का एक डायलॉग बता देता हूँ। जब जनक जी स्वयंवर रचते हैं सीता माता के लिए, तो दूर दूर के राजा आते हैं, किसी से भी धनुष नहीं उठ पाता, नहीं टूट पाता, तो जनक जी कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं वीरों के लिए जो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुए। तो उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर, राजन होकर इस तरह ज्ञान बान बलवान, एक जरासी बात पर हम वीरों का अपमान, बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को ये बर्छी बाण सरीके हैं, एक एक छेद है हमारी छाती में, एक एक तुम्हारी बाणी पर, हमको दूषित कर डाला सिर्फ इनकी नादानी पर। जो वीर क्षत्रिय पुत्र हैं वो अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कहाँ रह सकते हैं। आज राजसभा में बुलवाकर जो तुमने क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अच्छा ही राजन तुमने अपने मेहमानों का सत्कार किया। जहाँ रघुवंश के दो दो धनुषधारी उपस्थित हो, वहाँ ऐसे कटु वचन कहना कहाँ की बुद्धिमानी है। धनुष बोधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उठाकर फेंक दूं पर्वतों को अगर आए वो भी तीर के आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। और जो हमारी रामलीला है तो हमारी है मुरादाबाद शैली से। मुरादाबाद? हाँ जी। आप मुरादाबाद में जाकर पाठ करते हैं? नहीं, मुरादाबाद शैली हमारी जो दिल्ली में इस बार रामलीला किया था उन्होंने दक्षिणपुरी, तो वहीं पर हम इनसे कांटेक्ट में आए थे और हमारी रामलीला जो हुई थी दिल्ली में ही हुई थी, दक्षिणपुरी। जी। तो आप कौन से अभिनय करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैंने इस बार काफ़ी सारे रोल प्ले किए थे, जैसे कि कौशल्या हो गया, केकई हो गया, स्वरूप नखा हो गया। ऑलराउंडर में मैं प्ले करती हूँ। कौशल्या का? हाँ जी, मुझे आज यहाँ पर मुझे कौशल्या के बेस पर मुझे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण में सम्मानित हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा पहला सम्मान है और यहाँ पर आके मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों से मिली हूँ और उनका क्या कहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर से मिली हूँ, उनका कला देखी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आशा करती हूँ मेरे अंदर जो भी कमियाँ होंगी उनसे सुधारेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट अवार्ड था और मैं तहे दिल से इसका थैंक यू करना चाहती हूँ। की नाम है सर? संदीप अरोड़ा। ओके। कहाँ से आए हो आप? ग्रेटर नोएडा। नोएडा। कौन सा मंच है? सर श्रीजी कला मंच ग्रेटर नोएडा से हैं हम लोग जी। और आज हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की है जी, जिसमें एक हमने सीता वियोग का दृश्य दिखाया है और बाकी हमने 4 दृश्य ब्रजभूमि वृंदावन श्री कृष्ण राधा जी पर किया, जिसमें उनके कृष्ण जन्म से लेकर के और बाल लीला तक एक भाग, फिर किशोर कृष्ण जी का दूसरा भाग, गोवर्धन तीसरा भाग, होली और उधो चौथा भाग। इन 4 भागों को बांटकर हमने एक राधा रास बिहारी की नृत्य नाटिका दिखाई यहाँ पे जी। और ये जो राम सेवक कला मंच है इन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया था जी। इन्होंने सम्मान किया, वो कैसे लगे? सर मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी टीम के पास शब्द नहीं है। हम 22 लोगों की टीम यहाँ पर आई है, परफॉर्म भी किया है। हमारे पास सच में चंडीगढ़ पंजाब के लिए कोई शब्द नहीं है। इतना सम्मान, प्यार और सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति के साथ जुड़कर जो ये लोग काम कर रहे हैं, उन कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं जिनको लोग पूछते भी नहीं हैं। केकई,
वेदवती, सीता, राम, लक्ष्मण, रावण को सब पूछते हैं, लेकिन जो कलाकार और भी होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। पर इन्होंने उनको पूछकर उन लड़कों को जो लड़की बनते हैं, उन लड़कियों को जो घर से निकलकर परफॉर्म कर रही हैं, इन रोलों को, छोटे रोलों को, छोटे तो नहीं कहूँगा, खैर रामलीला में, रामायण में कोई छोटा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनको अवॉइड करते हैं, इतना वो नहीं जितना सीता जी और राम जी पर होते हैं, लेकिन इन्होंने उनको अवार्ड देकर सच में बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये बच्चे भी बहुत खुश हैं और आगे से इन बच्चों में उत्साह बढ़ेगा, ये रामायण से जुड़ेंगे और रामायण से जुड़ेंगे तो हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताशा किरण है जी। आप भी नोएडा से? हाँ जी, मैं भी नोएडा से आई हूँ। हम सारी टीम हमारी नोएडा गाज़ियाबाद से है जी। आप कौन सा अभिनय करते हैं रामलीला में? मोस्टली मैं सीता जी का रोल करती हूँ। पिछले 6-7 साल से सीता जी का रोल करती हूँ, प्लस वेदवती का भी कर रही हूँ। बाकी मतलब ऑलराउंडर हूँ, तो वेदवती का भी हो गया है 2-3 बार। लेकिन यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिला है वो वेदवती का मिला है, बिकॉज सीता का तो कई बार मिल गया है। तो जो रोल्स जिनके अवार्ड्स नहीं मिले हैं उनको जिस तरीके से यहाँ चंडीगढ़ की टीम ने आगे ला के अवार्ड दिए हैं, तो उसी तरीके से वेदवती का अवार्ड मुझे मिला है। कोई डायलॉग सुनाएंगे? जी, सीता जी का सुनाऊँ या वेदवती का? सीता जी का। बिन पति पत्नी जगत में स्वामी, बिन पति पत्नी जगत में, देह है बिन प्राण की, और जल बिना हो मीन जैसे, राम बिन है जान की। स्वामी, जैसे बिना प्राण के शरीर और जल के बिना तालाब शोभाहीन होता है, उसी प्रकार से स्त्री का जीवन बिना पुरुष के व्यर्थ होता है स्वामी, व्यर्थ होता है। तो इस रामलीला के अलावा भी कहीं आपने अभिनय किया? रामलीला का मेन जो है उद्देश्य वो इसलिए है कि हमारा धार्मिक रोल में बहुत मन है, मतलब धार्मिक रोल होता है वो, उसमें बहुत मन है। बाकी तो वैसे किया है, मतलब एक्टिंग में मोस्टली मेरा मॉडलिंग में है, एक्टिंग में है, सॉन्ग्स वगैरह इस तरीके से। तो आज सम्मान मिला, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी। चंडीगढ़ आना हुआ है बट एक्ट के लिए आना नहीं हुआ, तो आज मैं एक्ट में आई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हमारी सारी टीम को एक मौका मिला चंडीगढ़ में एक्ट करने का, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्लस मैं संदीप सर का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो संदीप सर हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी वजह से हमें ये आज दिन देखने के लिए मिला है, मुझे भी, हमारी सारी टीम को भी। तो संदीप सर के लिए थैंक यू और आप सभी के लिए भी थैंक यू। थैंक यू। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। नमस्कार जी। सब नाल पहले तो मैं तिवान चैनल वाले का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना वा, जिन्हें मैनू कुछ पूछ रहे हैं, मैं जवाब देंगा उन्होंने उनकी गल्लां दा। पूछो जी, पूछो जो तुसी जी। सो पहले तो मैं तुहानू ये पूछना चाहांगा कि तुहाडी एज कितनी हो गई है इस वे? मैं जी 78 प्लस हाँ जी इस टाइम। 78 प्लस हो। सो तुसी रंगमंच दे नाल, रामलीला मंच दे नाल जुड़े हो, कदों तो जुड़े हुए? मैं जी 1957 तो, यानी मैनू 66वां साल है रामलीला नाल जुड़िया होया। सो 66 साल तो तुसी रामलीला दे नाल जुड़े हुए हो, फिर भी अज बरकरार हो 78 साल की उम्र दे विच भी। सो की कहूँगे, इसदा राज की है? ये सारी जी ईश्वर की कृपा है। कहते ना जा पे कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये उस प्रभु की कृपा है। तो तुसी हैरान हो गए कि मेरी एक बार बाईपास सर्जरी हो चुकी जे जी, ओपन हार्ट, और 3 बार मैंने स्टंट पे आ चुके जे। उस तो बावजूद है मैं प्रभु की कृपा है कि अजय भी मैं सोहने डायलॉग बोल लेना वा। बाकी मेहरबानी ईश्वर रखे तो अगले साल फिर सही। बाकी तुसी कोई इच्छा व्यक्त करो भी सो इन्नी एज 66 साल तुसी रामलीला दे विच लगाए है। मेरा तो ख्याल है भी शायद कोई रोल तुसी नहीं छड्डिया होगा जिहड़ा नहीं कीता होगा। देखो जी, मैं वैसे तो डायरैक्शन दी है बहुत ज़्यादा। रोल जेडे मैं कीते ने, राम का नहीं किया तो रावण का नहीं किया। पर रावण का एक बार मैंने करना पै गया, बंदा बीमार हो गया सी, मैं किया रोल उहदे च। परंतु मैं वैसे ज़्यादातर जो रोल किए ने लक्ष्मण का किया, अगर लक्ष्मण नहीं बनया तो परशुराम बनया, दशरथ का किया। और एक ड्रामा होंदा सी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उहदे मैं हरिश्चंद्र का रोल किया, कई साल किया। एक वीर अभिमन्यु का ड्रामा होंदा सी,
ਉਹ ਵੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਡਾਇਲਾਗ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲਿਖਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-250 ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ। रुक गए बहते हुए दरिया मेरी रफ्तार से, गर्जना है मौन बादल की मेरी हुंकार से। जिसको पकड़ा काल के पंजे में गोया फंस गया, जिसको दाबा वो सातल तक जमीन में धस गया। पत्थर का है दिल हमारा, मोम या शीशा नहीं, हमने भय खाना किसी से आज तक सीखा नहीं। वाह जी वाह। सो ये रावण जी के डायलॉग सी? जी हाँ, ये रावण के डायलॉग ने। एक बारी मैं एक सरदार जी का रोल किया। काहदा जी? सरदार जी का। अच्छा जी, ओके। देश भगत सरदार जी का। आतंकवाद की धमकी आई है कि भाई तेनों असीं मार देना, तू एक काम जो फड़िया ना छोड़ दे, साढ़े नाल आ जा। तो मैं क्या भाई ये तो नहीं, मैं नहीं छड़ना। तो मेरी वाइफ जी है वो कहती बिल्कुल नहीं छड़ना, तुहानूं कुछ नहीं होएगा, वाहिगुरू राखा तुहाडा। तो उन्होंने मैनूं आतंकवादियों ने सद्दिया कि तू साढ़े कोल पहुँच, साढ़े नाल गल कर, नहीं तो तेन मार देना। मैं क्या भाई हुण मैं जा रहा, मेरे दिल च है कि मेरी वाइफ का की बनेगा मेरे बाद। वो कहती तुम चिंता ना करो, रब रखा है। हुण मैं उतों जा रहा वहाँ, जाते जाते फिर मैं वापस आना वा कि मैं वाइफ का ख्याल आंदा है। तो मैं उन्होंने कहना वा, डायलॉग सुना दिया, लो सुनो जी। जनानी का नाम चन्नी। कहता चन्नीए तू मेरा प्यार भी है ते मेरी प्रेरणा भी। अच्छी चाह के मैंने लोगों ने पूछना है कि क्यों हो रही है बेगुनाह की हत्या, क्यों बहाया जा रहा है बेकसूरों का खून। एक ही प्यो दे दो पुत्र, एक केस तारी होया तो सिख हो गया, जेकर किने केस कटा देते तो हिंदू हो गया। मैं पूछना वा जो ना दोनों तो किसे को नहीं लगे गोली ते किदी फटेगी छाती, किनू होएगी पीड़ उन्हां दे मापियां नू जिन्हां बच्चा रिया उन्हां नू जन्म दिता है। खून दा रंग लाल चलिए तो लाल ही रहेगा, भावें हिंदू दा होवे, सिख दा होवे, ईसाई या मुसलमान दा होवे, खून ते लाल ही रहेगा चलिए, भावें वो किसी भी इंसान दा होवे। ए मुट्ठी पर आतंकवादी जिन्हां दा कोई मजहब नहीं, कोई मकसद नहीं, जिन्हां दी कोई मंजिल भी तो नहीं, अज विदेशी ताकतों के नाल मिल के अपने इस मुल्क में अग लगा रहे ने। चलिए अग लगा रहे ने ते जिदी लगी हुई अग च अज असी सारे झुलस रहे हैं, झुलस रहे हैं, झुलस रहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत